جب میں پڑھتا تھا جونیئر، بہت ہی جونیئر تھا، ابھی بھی پڑھتا ہوں، ایسا نہیں کہ پڑھتا نہیں، کبھی بھی کچھ بھی ملا، کوئی نسخہ ملا، کسی نے کچھ چیز کے بارے میں بتایا یا کئی کٹ کر کے کوئی پیپر میں اٹھا کے لکھ دیتے، کبھی سگریٹ کے پیکٹ میں، کبھی میچ باکس میں، یا کبھی ہاتھ میں لکھ کے رکھتے اور وہ جیب میں ڈال دیتے، اور گھر پہ جا کے اس کو کیا کرتے کہ ڈائری میں لکھتا ہے. جیسے ہم لوگ کبھی دیکھا ہوگا نا، بیاض ہے بیاض ہے کبیر، لال بیاس، پرانے زمانے میں پڑھتے تھے لال بیاس، بیاس مطلب ڈائری. تو اس زمانے میں یہ عادت تھا کہ ہم لوگ سب کے پاس ایک ڈائری رہتا تھا حکمت کے لیے. تو اس میں جو بھی ملتا ہے ان لوگ وہ نوٹ کر کے رکھتا ہے، جیسے باعث کبیر ہو، باعث ابیل ہو، باعث لال ہو کچھ. تو میں نے بھی ایسا کیا، کرتے کرتے میرے پاس تقریباً 10-12 کتابیں، مطلب میرے خود کی سمجھو بیاض ڈائریز. اس میں تقریباً لاکھوں کا نسخہ ہے، 1-2-1.5 لاکھ کے اوپر نسخے اس کے اندر، مفرد ہے، مرکب ہے، حکمت ہے، سب لکھ کے جمع کر کے رکھی. کبھی کبھی سوچتا کہ کسی کے ساتھ اس کو شیئر کرو، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، سب چیز کے بارے میں بات کر سکتے. بیاض اجمل ابھی بہت ہی انٹرسٹنگ، اتنی انٹرسٹنگ ایکچولی یہ جو حصہ ہے، یعنی کہ سمجھو ادویات کی جو حصہ، ایک مزیدار حصہ ہے نا. کسی سے بھی پوچھ کے دیکھو یونانی کی فلسفی کیسے، یونانی کی فلسفی بہت اچھی ہے، یونانی کی علاج کیا، یونانی کی علاج بھی اچھی، یونانی کی ہر چیز اچھا ہے. لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہم نے یونانی کی وہ فنڈامنٹل فالو نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو کبھی کبھی ڈرائی لگتا ہے. اب یہ کلیات ادویہ کہے گا تو ہم نے تو ادویہ پڑھ کے رکھی ہے، ہم نے کلیات ادویہ نہیں پڑھی. کلیات ادویہ کچھ پڑھے ہوں گے کچھ حد تک، لیکن جو حساب سے ادویات کو استعمال کرنے کے حساب سے ہم نے جو کلیات پڑھے وہ ہم نے باقاعدہ نہیں پڑھے. اگر وہ پڑھا ہوتا تو اپنے کو بہت ساری جگہ پہ وہ کام آئے ہوتے. اس میں ایک پرابلم کہاں سے شروع ہوا معلوم؟ اس میں پرابلم وہیں سے شروع ہوا کہ ہم لوگ کو ماڈرن فارماکولوجی جب سکھایا ادھر سے ہمارا پرابلم شروع ہوا. ماڈرن یعنی کہ سائنٹیفک، یعنی کہ سچ ہے نا، یہ ہماری ایک نظریہ ہے. سائنس ہے تو سچ ہے. ایک بات آج میں بتاؤں، سائنس سے سچ ہونے کی مطلب ضروری نہیں، یہ سائنٹیفک ہے. یہ ہم لوگ کے گمان ہے، سائنٹیفک بولے تو سچ ہو سکتے نہیں، سائنٹیفک کبھی غلط بھی ہوتا ہے. اس لیے آج دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سائنٹیفک حقیقت بعد میں بدلتا ہے، بعد میں اصلاح ہوتا ہے. سائنس غلط ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا معلوم؟ جب ہم لوگ منطق پڑھتے تھے، منطق، اس میں بحث ہوتا تھا، بحث کے ذریعے ایک نتیجے میں پہنچتا تھا، اس نتیجے کو ایک سائنس کی شکل اختیار کرتا. ایک مثال کے طور پہ لاجک میں، منطق میں 2 میتھڈ ہے سچائی تک پہنچنے کی یا سچائی کو ثابت کرنے کی. ایک ہوتا ہے کہ ڈیڈکٹیو میتھڈ، لکھ کے رکھو کام آئیں گے. ڈیڈکٹیو میتھڈ، DEDUCTIVE، ڈیڈکٹیو میتھڈ. اور ایک ہوتا ہے انڈکشن میتھڈ. کیا ہے؟ ایک ڈیڈکٹیو میتھڈ اور ایک انڈکشن میتھڈ. اس میں انڈکشن میتھڈ وہ سائنس استعمال کرتا ہے. انڈکشن میتھڈ سائنس فالو کرتا ہے، ڈیڈکٹر نہیں. ہم دیکھیں یہ دونوں کیا چیز ہے. وٹ از انڈکشن میتھڈ یا انڈکٹیو میتھڈ؟ مثال کے طور پہ اجمل ایک ملباری ہے، ایک پریمائسس ہو گیا، ایک حقیقت ہے. اجمل ایک ملباری ہے، ایک پریمائسس ہو گیا. نمبر 2، زیادہ تر ملباری کو مچھلی پسند ہے، یہ سیکنڈ پریمائسس ہو گیا. اب اس کا کنکلوژن نکالا ہم نے، اسی لیے اجمل کو بھی مچھلی پسند ہے. یہ ضروری نہیں کہ شاید اجمل کو نفرت ہوگا مچھلی کا. ہر ملباری
अजमल एक मलबारी है, ज्यादातर मलबारी मछली पसंद करता है, इसलिए अजमल को मछली पसंद है। शायद अजमल जिंदगी में कभी मछली खाया नहीं। ये साइंटिफिक मेथड है। मिसाल के तौर पे मैंने बहुत सारे खरगोश को देखे, हजारों खरगोश को, यानी कि 1 करोड़ खरगोश को देखे या 1 लाख खरगोश को देखे, सब खरगोश सफेद था। बाद में मैंने कंक्लूड किया दुनिया का तमाम खरगोश व्हाइट ही रहेंगे। मेरे 5 साल की 10 साल की तजुर्बे से मुझे मालूम पड़ा सब खरगोश व्हाइट है। ये जरूरी नहीं कि 11वें साल में मैंने कहीं पहाड़ में कहीं जंगल में रैबिट की कोई ब्राउन नस्ल और ब्लैक नस्ल देखी, इसका मतलब कि जितने मैंने साइंटिफिक मेथड से में वो सब नलिफाई हो गए, गलत हो गए। ये है साइंटिफिक मेथड। इसलिए हमेशा साइंटिफिक मेथड जरूरी नहीं कि साइंस सच हो। हमने 10 लाख लोग का बीपी देखे, सबके बीपी 120/80 हमने लिख दिया, सबका बीपी सब, उसमें ये साबित होता है उसमें से कुछ लोग का बीपी 110/70 होता है, उसके लिए नॉर्मल है। कुछ लोग को 130/90 होता है, या कुछ लोग को 110/70 होता है, उनका नॉर्मल है। तो इंडक्टिव मेथड में हमेशा गलत होता है, साइंस वो फॉलो करता है। इसलिए याद रखना, साइंस का मतलब सच नहीं। साइंस का मतलब जितना हमने मुतालिया किया उसके मुताबिक हमने प्रीमाइसेस के हिसाब से हमने कंक्लूड किया। जितने भी आतंकवादी ये टोपी पहने, एक प्रीमाइसेस बना दिया, और ये टोपी, वो टोपी वाले सब ज्यादातर मुसलमान पहनता है, तो कंक्लूड कर दिया तमाम मुसलमान आतंकवादी है। ये भी एक साइंस है। ये सब मंदिर हमको पढ़ाए थे लेकिन हमने पढ़ा नहीं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव मेथड। दूसरा एक मेथड है डिडक्टिव मेथड, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है। जैसे अजमल एक इंसान है, अजमल एक इंसान है, तमाम इंसान खुलिये से बना हुआ है, इसलिए अजमल भी खुलिये से बना है। ये डिडक्टिव मेथड है, ये डिडक्टिव मेथड है। ये गलत नहीं होता, लेकिन इसमें भी गलत हो सकता है। ये डिडक्टिव मेथड है। साइंस की जो मेथड है वो ऑब्जर्वेशन के आधार पर है, वो गलत होता है। मैंने 10 साल रिसर्च किया, मैं 10 साल में भी सफेद खरगोश को ही देखा, तो इसलिए मैंने दुनिया के सामने पेश किया तमाम खरगोश सफेद होता है। तो कभी मैंने अक्सर मिसाल देते, मैथमेटिक्स भी कभी कभी गलत होता है। मैथमेटिक्स भी एक साइंस है, मैथमेटिक्स भी एक साइंस है। व्हाट साइंस? प्रूव्ड साइंस। क्या है? मैथमेटिक्स ऑलरेडी प्रूव्ड है। किसी ने मैथमेटिक्स से कोई बता दिया, मैथमेटिक्स का क्या सबूत है? सबूत नहीं पूछता। जैसे 2 + 2 4, 2 1 2 + 1 3, बाद में कोई नहीं पूछता, सबूत मांगता हूं मुझे, क्योंकि मैथमेटिक्स खुद एक सबूत है। मैंने अक्सर वो वाक्य सुनाता हूं, बच्चे के वाक्य, आप लोगों को भी सुना होगा, फिर भी और एक बार सुन लीजिए। एक स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर उस्ताद क्लास लेक्चर लेता है, उसमें एक लड़का जो रहता है वो हमेशा कुछ जवाब विवाब नहीं देता, खाली मफ पीछे बैठा रहता है। मैथमेटिक्स से थोड़ा टफ है ना, जवाब नहीं देता। तो मैथमेटिक्स का टीचर सोचा, समझो आज तुम्हारे घर पे या एक तबेले पे 10 भैंसे, उसमें से एक भैंस अगर बाहर निकल गया तो कितने भैंस रहेंगे? साइंस के मुताबिक 9 भैंसे रहेंगे। तो सर ने सवाल पूछा, एक भैंस निकल गया तो कितने भैंसे? तो सब लोग ने बोले 9।
اور اس میں ایک بچہ جو تھا ہمیشہ کبھی جواب نہیں دیتا تھا, سب اس کو مف کہتے تھا, کوئی پڑھتے نہیں, بہت مینٹلی ریٹارڈ, وہ پہلی بار کھڑے ہو کے زور سے بولنے لگا, استاد 0. تو استاد بھی بھٹک گیا, میں نے دیکھو پاگل تھا, کنفرم آ گیا تم پاگل ہے, تو اور جوش میں آ گیا, نہیں سر ہم لوگ کا خاندانی بزنس ہے تبیلا, باپ داداؤں سے, میں بچپن سے دیکھتے آ رہے میرے گھر پہ بھینس ہیں, اگر ایک بھینس نکل گیا اس کے پیچھے پوری کی پوری بھینس نکل جاتی ہے, اور طبیلے پہ ایک بھی بھینس نہیں بچتا, میں ڈیلی دیکھتا صبح, خالی ایک اڑی مارا, چھوٹا سا ایک جگہ بنا کے تو ادھر سے مارا, اس کے پیچھے تمام بھینس نکل جاتی. یہ میری سائنس ہے, کیونکہ یہ میرا تجربہ ہے, یہ میری تجربہ ہے, میں اس آدھار پر کام کرتا ہوں, دس از سائنس. اب یہ میتھمیٹکس فیل ہو گیا, یہ میتھمیٹکس فیل ہو گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ جگہ پہ اسی ہر چیز کو اسی بیان کیا, یعنی کہ ہر جگہ آپ کی سائنس 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 غلط ہوتا ہے, یہ بھی تجربہ جیتتا ہے, قیاس و تجربہ. تو یہاں میں اس بات کی جو فنڈامنٹل بیس اس لیے ڈال رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ, ہماری ٹریٹمنٹ میں جب دوا کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے آپ, تو کبھی کبھی آپ لوگوں کو, جیسے بچے نے جو ایکسپیرینس کیا بھینس کی, خود کی ایک ایکسپیرینس کی بڑا اہمیت ہے دوا کے استعمال میں. یہ نہیں کہ مستعل المفردات میں, خزائن الادویہ میں, یا مفرد کے صفی الدین کی مفردات کی کتاب میں, یا کتاب العقاقیر میں, یا ابن بہتر کی جامع المفرد واغذیہ میں, سب فلاں فلاں لکھ کے رکھے, اس لیے وہ ہم فالو کریں ضروری نہیں ہے. وہ شاید میتھمیٹکس ہو سکتا ہے, غلط ہو سکتا ہے, وہ اپنی خود کی تجربہ بھی لکھا ہوگا. ہم کو چاہیے ایک پرفیکٹ آنسر. وہ کبھی کبھی ریزلٹ اگر نہیں مل رہا آج کے دور کے حساب سے, تو آپ لوگ کو تھوڑا الگ انداز سے سوچنا پڑے گا. مثال کے طور پہ کہتے ہیں نا کہ یو تھنک آؤٹ آف دا باکس, باکس کے باہر آ کی طرح سوچو. مثال کے طور پہ ایک باکس کے اندر میں بہت سارے چیز ڈال کے رکھے, اس کے اندر قلم ہے, پیپر ہے, باکس ہے, پیسہ ہے, بہت سارے مختلف اشیاء ہم نے ایک باکس کے اندر ڈال دیا. اور سپوز میں باکس کے اندر کا ایک مخلوق ہوں, یا آپ بھی ایک باکس کے اندر کا ایک آبجیکٹ ہے زندہ, تو کسی نے باہر سے اس باکس کو ہلایا, تو ہماری زندگی وہ باکس کے اندر ہے. ہماری ڈسکشن, ہماری سوچ, ہماری بحث, ہماری تجربہ, ہماری جو 5 سینس آرگن اس باکس کے اندر ہی, 5 سینس آرگن. تو اگر سپوز میرے طرف کچھ گرے یا اس کی طرف مائی گرے, یا تو ہم لوگ نے ایک سائنس بنایا, وہ باکس کے اندر کے لیے ایک سائنس بنایا, یہ فلانا سائنس, وہ باکس کے اندر رہ کے ہم نے ایک سائنس بنایا, اس آدھار پر ہماری باکس کی دنیا کو چلانے شروع کر دیا. ایک آدمی نے کیا کیا, باکس کے کیسے بھی جدوجہد کر کے باکس کے اندر آیا اور باکس کو دیکھنے لگے. تو باکس کوئی آدمی ہلا رہا ہے اس کو باہر سے, لیکن اندر والے کو نہیں معلوم باکس ہلا رہا ہے. کس وجہ سے اتنی ساری واقعات باکس کے اندر ہو رہے ہیں, باکس ہلنے کی وجہ سے. اس کو بولتے آؤٹ آف دا باکس. جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے, جیسے آئنسٹین ہو, نیوٹن ہو, وہ سب آؤٹ آف دا باکس جا کے, دنیا میں نہیں, دنیا سے باہر جا کے دنیا کو دیکھے, تب ان کو سمجھ میں آنے لگا یہ کیسے چل رہا ہے. آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنے لگے. ڈاکٹر نیار اقبال صاحب اپنا ویڈیو آف کر لیں آپ. ڈاکٹر اسی نیار لیے اقبال, اس کو کیا ہوا, آؤٹ آف دا باکس جانے کا, اور آئنسٹین ایسے ایسی تھیوری پیش کیا, آج بھی ہماری ذہن اس کو قبول نہیں کرتی. اتنی بڑے ٹاپک اس نے پیش کیا 100 سال پہلے. ہم آج کمپیوٹر میں دیکھ کے اس کی اینیمیشن سمجھ میں نہیں آتے, اس چیز کو لوگوں نے آؤٹ آف دا باکس جا کے, کیوں وہ آؤٹ آف دا باکس آئے. تو ہم لوگ کو بھی کیا کرنا پڑیں گے, ہم لوگ باکس کے اندر رہ کے ہم نے تھوڑا فارماکولوجی سیکھے, ہم نے تھوڑا ٹرمینالوجی سیکھ کے رکھے, اینٹی سیپٹک, اینٹی بایوٹک, اینٹی ہسٹامین, اینٹی فنگل,
जितने एंटी टर्मिनोलॉजी सीख के रखे, एंटी स्टेमिन दे डालो, एंटी पायरेटिक दे डालो, एनाल्जेसिक दे डालो, एंटी एमेटिक दे, ये थोड़ा चंद टर्मिनोलॉजी सीख के हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया समझते अपने आप को, यानी बॉक्स के अंदर रह के, बॉक्स के अंदर रह के। तो वो टर्मिनोलॉजी, वो फार्माकोलॉजी हमको गुमराह कर दिया गया। कैसे गुमराह कर दिया हमको? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पार्किंसोनिज्म का डिजीज हो गया, या डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्व शीट हो गया, या मस्कुलर या एमएनडी हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, कुछ भी हो जो न्यूरो में लाइलाज मर्ज जाना जाता। फॉर एग्जाम्पल कल एक पेशेंट रहता हमारे पास, वो एमएनडी था, मतलब उसको डीमाइलिनेशन ऑफ दी हो गया। अगर बॉक्स के अंदर रह के मैं अगर सोचने लगा यूनानी में मैं इसको क्या दूं, यूनानी में क्या दूं, तो हमारी फिलोसफी कहां जाएंगे? मुकव्वी आसाब, मुकव्वी आसाब, मुहर्रिक आसाब, मुसक्किन आसाब, क्योंकि बॉक्स के अंदर रह के हमने क्या सीखे? ये आसाबी मर्ज है, ये आसाबी मर्ज है, इसीलिए हम इसको क्या क्या मैक्सिमम दे सकते हैं, तो मुहर्रिक दे सकते हैं, या मुसक्किन दे सकते हैं, या मुकव्वी दे सकते हैं। 3 वर्ड हमने सीख के रखे दुनिया के हिसाब से, बॉक्स के अंदर रख के, उसके आगे नहीं जा सकते। यहां हमको जरूरत है जो आइंस्टीन ने किए थे, जो न्यूटन ने किए थे। आइंस्टीन और न्यूटन ने मुहर्रिक और मुसक्किन का वर्ड ही छोड़ दिया। आइंस्टीन ने क्या सोचा, या आइंस्टीन ने क्या देखे, वो बाहर आके देखे कि यार ये सब मामला अंदर, ये जो हलचल चल रहा है बॉक्स के अंदर, कोई आदमी बॉक्स को हिला रहा है, या वो बॉक्स दूसरे बॉक्स के अंदर है, और वो बॉक्स कोई गाड़ी पे चल रहा है, वो गाड़ी जमीन से चल रही है, वो जमीन घूम रहे, वो जमीन गैलेक्सी, इतनी इन्फिनिटी सोचने लगे। उसके बाद में वो जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे बेहतरीन कंसेप्ट दुनिया को पेश किया गया। आज हम लोग जो भी इस्तेमाल करते बहुत सारे टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल प्रिंसिपल को सोचता। अगर हम एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी की केस को, एमएनडी की केस ट्रीट करने जा रहे हैं, कहां तक जाएंगे हम लोग बॉक्स के हिसाब से? एक अब्बे अजराकी लिख के देंगे, एक माजिन अजराकी लिख के देंगे, एक माजिन फलासफा लिख के देंगे, एक माउलम लिख के देंगे, या एक मुरवुल अरवा लिख के देंगे, या माजिन जलाली लिख के, सब ताकत की दवा है। इतनी हमारी सोच बॉक्स के अंदर रहने की वजह से, वो रहने की वजह भी है, वो रहने की वजह, हमने थोड़ा फार्माकोलॉजी पढ़ लिया, मॉडर्न फार्माकोलॉजी, तो हम समझते साइंस से मॉडर्न है, गलत नहीं हो सकते। तो हमने मुकव्वी, मुहर्रिक, मुसफ़ी कुछ वर्ड सीख लिया, मुकव्वियात, मुहर्रिकात, मुसफ़ियात, मुंतमिलात बोल के नाम रख, उससे जोड़ने की कोशिश। यहां हमको चाहिए न्यूटन और आइंस्टीन की थॉट, सोच। हमने सोचे कि मॉडर्न बता रहा है या पार्किंसोनिज्म का वजह नर्व ट्रांसमिटर्स या नर्व कंडक्शन के लिए जो मादा, जो कीमिया इस्तेमाल होता है, या तो वो कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि ऐसी जगह पे तुम कबीरुद्दीन की जो किताब, जो ट्रांसलेटेड किताब पढ़े, इब्न सीना की किताब पढ़े, या इब्न सीना की सोच को इस्तेमाल करो, या मैंने हकीम अजमल ने कोई किताब लिख के रखी, सर ने अपने तजुर्बा में लिखा है, ये मुजर्रफ है, ये आपको फॉलो करने की जरूरत है। आपकी थॉट एक्सपेरिमेंट ये होना चाहिए, ये नो डाउट साइंस के मुताबिक ये एक आसाबी मर्ज है। कौन सी? एमएनडी। अब कंडक्शन नहीं हो रहा है, अब हमने पढ़ा है आसाब का या दिमाग का मिजाज बारिक रतब है। अब मुझे ये सोचना है यहां क्या प्रॉब्लम हुआ, खेती में पानी ज्यादा बढ़ने से मेरी फसल खराब हो गया, या खेती में पानी सूखने की वजह से मेरी खेती खराब हो गई? दोनों एस्पेक्ट है। मुझे इसमें दूसरे किसी की सहारे की जरूरत थी, मेरी थॉट एक्सपेरिमेंट, मैं बॉक्स से बाहर आके सोच रहा हूं।
यहाँ खेती में पानी ज्यादा होके सड़ गया मेरी चावल या गेहूं, या बारिश न होने की वजह से मेरी खेती खराब हो गई, एंड रिजल्ट खराब है। एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट गेहूं नहीं मिल रहा है मार्केट में, या राइस नहीं मिल रहा है, उसकी तंकी चल रही है। वजह दो हो सकते हैं, वजह हमको इतना मालूम पानी ही वजह है, बाकी कुछ नहीं कंफर्म है, क्योंकि ये बलगमी अमराज है। अब पानी ही वजह है तो देखना कि पानी ज्यादा हो गया क्या, या पानी न हुआ है क्या। तब हमने देखा कि बाबा ये आसाबी मर्ज था, तो हमने पट करके अब्बे अजराकी लिख के दिए। अब्बे अजराकी का मिजाज गर्म है, हमने इलाज भी जिद पढ़ के रखे थे। उसूल इलाज में क्या है? इलाज भी जिद, कुछ भी हो, कुछ भी हो, वहां हमको जिद इलाज करना है। लेकिन यहां अगर किसी को आसाबी मर्ज हो गया तो फट करके हम ये सोचते कि आसाब बारिश अमराज है ना, चलो गर्म दवा दे दिया जाए। भाई उधर आसाब में रुतूबत बढ़ाए क्या, ये बूसत बढ़ा, ये भी एक मामला है ना। सिर्फ हरारत और बरूद साथ साथ आसाब की खुश्की की वजह से, आसाब के अंदर ये बूसत की वजह से, आसाब के अंदर ड्राइनेस की वजह से ये जो इलेक्ट्रिसिटी भागना चाहिए या डिले ये होना चाहिए, क्योंकि सप्लाई होना चाहिए, उसमें डिले हो रहे। दुनिया के हिसाब से, बॉक्स के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, एसिटाइलकोलिन हो सकते हैं, डोपामिन हो सकते हैं, डोपामिन हो या एड्रेनालिन हो, कुछ भी हो, वो बात की बात, वो बॉक्स के अंदर की बात है। बॉक्स हिलाने के बाद में आदमी अंदर अंदर हलचल चले, बॉक्स आजकल हिल रहा नहीं, इसके अंदर भी कुछ हलचल नहीं चल रहा। तो हमने क्या बोला, तुम मेरे ऊपर फोर्स कम हो गया। फोर्स क्यों कम होगा? हिलाने वाला या हिलने वाला अमल बंद हो गया। तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई भी बीमारी की इलाज नहीं। मेरी एक तजुर्बा है, मेरी एक तरतीब है, मैं हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूँ। मैं कभी भी कोई ये नहीं किताब को फॉलो नहीं करता है, किसी को फॉलो नहीं करता है, कभी हमेशा मैं आउट ऑफ द बॉक्स करता हूँ जब ऐसी कोई डिजीज आता है। मिसाल के तौर पर आजकल अल्जाइमर्स, डिमेंशिया यूरोप में बहुत कॉमन है। उसकी फाइंडिंग्स क्या हुआ? उसकी फाइंडिंग कसरत से सिम्वाटिन जैसे एंटी कोलेस्ट्रॉल दवा खाने से ज्यादातर लोग की ब्रेन जो है ना, एट द एज ऑफ 60 and 70, अगर आप लोग MRI करके देखो रिजल्ट में क्या आएंगे, एज रिलेटेड एट्रोपी, सेनाइल डिजनरेशन एट द एज ऑफ 40, 50, 60। जबकि 100 साल में भी नहीं होता था एक जमाने नहीं, तकरीबन 60-70 साल पहले। जब से हम जरूरत के बगैर भी जितने भी आदत हो गया, डॉक्टर साहब कुछ दवा दो, तो एक एकोस्प्रिन और एक कोलेस्ट्रॉल की दवा, एक माइल्ड अटैक आ चुकी है, जिंदगी भर खाना है। माइल्ड अटैक, 2 अटैक हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास हो चुकी है। जो कार्डियक पेशेंट एक बार लेबल कर लेते तो जिंदगी भर क्या खाते हैं? कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। इधर एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच के देखो, तो बॉक्स के अंदर रह के क्या सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस रहेंगे, ब्लॉकेज आएंगे, बाद में सर्जरी, बाद में डेथ हो जाएगी। ये तुम्हारे अंदर की बॉक्स की हिस्ट्री। आउट ऑफ द बॉक्स सोच के देखो, अगर तुम मुसलसल एंटी कोलेस्ट्रॉल दवा खा रहे, एंटी कोलेस्ट्रॉल दवा, कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है? पतली चर्बी है वो। उसकी मिजाज क्या है? बलगम से मुशाबियत रखता है, बलगम से, पतली चर्बी, यानी कि थोड़ा सा रुतूबत रहते है उसके अंदर, इसलिए चर्बी वाला हमेशा सॉफ्ट रहते हैं। तो जितना तुम कोलेस्ट्रॉल की दवा खाएंगे उतना तुम्हारे अंदर खुश्की की गलबा, ये बूसत की तरफ तुम्हारी बॉडी जाएंगी, तुम्हारी जॉइंट पेन शुरू हो जाएंगी, तुम्हारी मेमोरी कम हो जाएगी, तुम्हारे ब्रेन एट्रोफी हो जाएगी। सब ऑलरेडी स्टडी हो चुके हैं। यूरोप में सब ज्यादातर लोग इसका खाना लिखना बंद कर दिया, और उसकी जगह पे यूरोप में भी फैशन है अल्जाइमर्स में, डिमेंशिया में, सेनाइल डिजनरेशन में, रात में सोने के टाइम पे 1 चम्मच प्योर कोकोनट ऑयल पीने की एक रिवाज, एक स्टाइल, एक फैशन हो गया। कुछ लोग घी खाते हैं 1 चम्मच, मैं डेली 1 चम्मच घी इस्तेमाल करता हूँ मॉर्निंग में। और कुछ लोग मुझे डराते हैं, डॉक्टर साहब आप
इतनी एज उम्र में आप सबको पूरी दुनिया कहते हैं कि घी इज नॉट गुड अटैक के लिए, तो मुसलमान अगर आता है तो मैंने उनको एक ही जवाब देता हूँ, कुलू वशरबू मिन तय्यिबात। उस तय्यिबात का बहुत सारे माना है। तय्यिब मीन्स गुड, साली होना चाहिए, नजस नहीं होना चाहिए, हराम नहीं होना चाहिए, हलाल का होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी वाला होना चाहिए, कमियत और कैफियत के हिसाब से, कमियत के हिसाब से नहीं, कैफियत के हिसाब से गुड क्वालिटी होनी चाहिए। ये कुलू वशरबू मिन तय्यिबात, क्योंकि हम लोग भी तय्यिब है ना, हम लोग अशरफुल मखलूक है। आलतू फालतू चीज हमारे लिए बनाए नहीं दुनिया में। पैसा है तो चने की जगह बादाम ही खाया करो, पैसा है तो बड़े की गोश्त की जगह मटन ही खाया करो, मटन ही खाया करो। मछली खरीदने गए, छोटे छोटे बांगड़ा मछली रखा है या पापलेट रखा है, पैसा अगर है तो पापलेट, पैसा अगर नहीं है तो ये इस्लाम यही सिखाता है। तुम एक अशरफुल मखलूक, यू आर एन एम्बेसडर, दुनिया के एम्बेसडर हो। इंडिया के एम्बेसडर के बारे में सोच के देखो, उसको क्या क्या खाना मिलता है कि एक मुल्क में गया तो उसको पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं एंट्री मारने की, कि वो वहां का एम्बेसडर है। हम दुनिया के एम्बेसडर है भाई, तमाम मखलूक में से। तो याद रखना, वहां जगह पे खाना पीना, आजकल फैशन ये है कि रात में सोने के टाइम में, मेरे अब्बू अभी 95 ईयर ओल्ड है माशाल्लाह, अभी भी बगैर चश्मा पढ़ता हूँ। पहले क्या करते, रात में सोने के टाइम हमेशा किचन में आता। मैं एक बार नोट किया, अब्बा किचन में क्यों जाता है, तो नारियल की जो डब्बी रहते ना, वो उठा के पी लेते साथ में रख के। पुणे में जब मैं पढ़ता था, एक बार वो टाइम पे मैं चाय पीने गया तो एक सन्यासी बैठा था। मैं इन लोगों से बहुत इंटरेक्ट करते रहता क्योंकि इनकी कॉन्शियसनेस जानने के, तो ऐसे इंटरव्यू किया तो बोला तुम जब जाता है जंगलों में, खाने पीने का क्या है तुम्हारी तरतीब, तो अभी भी फिट दिख रहा है बुढ़ा होने के बाद। तो वो सन्यासी, वो साधु ने क्या किया, वो उसकी जो थैली खोले, मुझे बताए देखो ये क्या बोला, नारियल की ये बोला नारियल की तेल है बोले। मैं एक सुबह एक शाम एक चम्मच नारियल की दूध ये पीता हूँ बोला, उसके बाद तो मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ती, द होल डे एनर्जी मुझे मिलता है। तो मैं ये सब चीज एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है, सब सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साइंस हमेशा गलत हो सकते, कि साइंस गलत होने के बहुत सारे सबूत हमारे पास है। 50 साल एक चीज को साइंस साइंस बोल के पता चला, 11वें साल बोले दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, समझा? क्योंकि उसमें इंडक्टिव मेथड इस्तेमाल करते, डिडक्टिव मेथड नहीं। याद रखना, इंशाल्लाह एक दिन अपने वो मंदिक और फलसफा के बारे में और मजीद बहस और मुबाहिसा चालू रखेंगे इंशाल्लाह। अभी नहीं, अभी कुछ लोगों को खाली दवा चाहिए, नुस्खा चाहिए, तो वो इंतजारी में कि डॉक्टर साहब कब नुस्खे के बारे में बात करें। तो यहाँ मुफरत दवाओं या दवाओं की जो इस्तेमाल में हमारी थॉट आउट ऑफ द बॉक्स न जाने की एक वजह, हमने टर्मिनोलॉजी सीख के फंस गया। एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, ये टर्मिनोलॉजी को अगर पढ़ा नहीं होता तो पुराने हकीम लोग का सक्सेस क्या था? ये मुबर्रिद है, ये मुसक्किन है, ये मुसख्खिन है, ये मुरत्तिब है। ये टर्मिनोलॉजी है हमारी यूनानी की टर्मिनोलॉजी। तो कोई भी दवा जब अपनी बॉडी में काम करता है, तुम लोग इस लिहाज से उसको रखो मत, ये कुव्वत बाग के लिए अच्छा है, ठीक है, वो सेकेंडरी है, सानवी है, उसकी सेकेंडरी इफेक्ट है। पिछले लेक्चर में किसी ने पीछे सवाल पूछे थे मुझे, डॉक्टर साहब इतनी सारी दवा है, ये सब कैसे याद रखेंगे? इतनी दवा याद रखने की क्या जरूरत है? आपकी फंडामेंटल का प्रिंसिपल है। किसी से भी पूछ के देखो, मेरी जूनियर्स, मेरे कॉलेज हॉस्पिटल में 10-15 जूनियर्स रहते हैं हमेशा, तो बोलते सर आप जब भी लिखते तो 4-5 दवा में ही खेलता हूँ। बोले 4-5 दवाई तो काफी है, क्योंकि 4-5 दवा से पूरी मर्ज वजूद में आ रहा है, 4-5 चीज से वजूद में आ रहा है। तो दवा जैसे आपने 4 दवा के 4-4 ग्रुप बना के रखे, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। अब यहाँ मुफरद दवा, मुरक्कब दवा,
मुफरत की जगह मुरक्कब इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि या तो मुफरत की अवेलेबिलिटी कम हो या उसकी इल्म की कमी हो, या 4-5 मुरक्कब मुफरत दवा मिलाने से एक मुरक्कब को हमने डिफाइन किया, डिजाइन किया, डेवलप किया, वो काम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ तुम लोग वक्ती तौर पे जो हमने जो साइंस में पढ़े फार्माकोलॉजी, दैट इज बेस्ड ऑन बायोकेमिस्ट्री, उसको जैसे नहीं कि कोई पिक्चर में सलमान खान एक को मार डालता है तो बाद में ऐसा मार्क करता है, सब रेड इसका भी खत्म हो गया, नहीं एक पुलिस ऑफिसर को मारता है, बोलता है डन, ऐसा बोलता है डन। तो सबसे पहले काम करो, अगर तुम फार्माकोलॉजी यूनानी के अंदर बहुत महारत हासिल करना है तो सबसे पहले मॉडर्न फार्माकोलॉजी को ऐसा बांध को इस्तेमाल करो। मैं बताऊंगा कब उसकी जरूरत पड़ती है। आपको यूनानी की फंडामेंटल, यूनानी की थियरी, यूनानी हिकमत, यूनानी हकीम, अगर प्योर यूनानी हकीम बनना है तो बायोकेमिस्ट्री को साइड में रखो, हमको कंफ्यूज करता वो चीज। सिर्फ 3 वर्ड याद रखो मिजाज के एतबार से दवा कैसे काम करता है। जैसे तुमने दाफे ताफुन पढ़े, दैट्स अगेन फार्माकोलॉजी के हिसाब से तुमने पढ़ के रखे, मॉडर्न फार्माकोलॉजी हमारा यूनानी फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं है, उसके हाथ नहीं जमा भाई। हाउ दिस मेडिसिन वर्क्स व्हेन इट एंटर योर बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर ये दवा दाखिल होने के पहले हाउ डज इट वर्क, ये है फार्माकोकाइनेटिक्स। जैसे हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा टेट्रासाइक्लिन, व्हेन इट गोस इनसाइड योर बॉडी within half hour, 1 hour प्लाज्मा में आएंगे, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में, then it act as बैक्टीरियोसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी क्या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है या बैक्टीरिया को मार डालता है। हाउ? बाय डिस्ट्रैक्टिंग द वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को खत्म करके बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोसिडल, CIDAL, या बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फार्माकोकाइनेटिक्स। हमारे पास किधर है फार्माकोकाइनेटिक्स? हमारे पास बहुत फार्माकोकाइनेटिक्स, वेरी इंटरेस्टिंग फार्माकोकाइनेटिक्स। तो याद रखने का दाफे ताफुल, ये सेकेंडरी है, सीखने का नहीं है, नहीं बोल रहा हूं। ये दाफे ताफुल, दाफे उम्मा, मुसक्किन अलम, मुंदमिले कुरू, कविए बा, कविए असाब, मुसफ़ी खून, ओके, जाली, तावी, मुफत्तिर, मुफत्तिह, ये सब वर्ड साइड में रखो, इस्तिलाहात को साइड में रखो। ये इस्तिलाहात भी हमको परेशान करा, हमारी सोच को महदूद किया गया। हकीम का सोच महदूद नहीं होना चाहिए। जैसे अलाउद्दीन ने बताया कि 2-3 दिन हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले अलाउद्दीन पूछते, सर टॉपिक टॉपिक टॉपिक, मतलब कुछ भी टॉपिक बोलो हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इस्तिलाहात सीखे, लैंग्वेज सीखे, लिंग्विस्टिक फिलोसफी सीखे तो हमारी बात बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। हमेशा हमको टॉपिक की कमी मिलेगी, टॉपिक की गुर्बत फील होगी, टॉपिक कम मिल रहा, टॉपिक नहीं मिल रहा, टॉपिक नहीं मिल रहा। अगर आपकी फंडामेंटल परफेक्ट है, कयामत तक आप बात कर सकते कोई भी टॉपिक के ऊपर। दैट इज व्हाट इज हकीम, दैट इज व्हाट इज हिकमत। तो यहां हमको ये सोचना चाहिए कि ये सब छोड़ो, तुम ये इस्तिलाहात को, जो मॉडर्न वाले एंटीसेप्टिक बोलते, तुम दाफे ताफुल, इतना तो फर्क है। तुम उर्दू में पढ़ता है और अपना आपको हकीम साबित करते, तुम हकीम नहीं है, तुम मॉडर्न डॉक्टर है, तुम बात उर्दू में करता है, दवा सब उस हिसाब से करते हैं। हिकमत के पीछे क्या राज है? वो बेस है, यानी कि कैफियत, कमियत नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है। तो 4 वर्ड याद रखो यूनानी फार्माकोलॉजी। मुसख्खिन, नॉट मुसक्किन। मुसख्खिन का मतलब क्या है? हरारत पहुंचाने वाले। उसके ऑपोजिट क्या है? मुबर्रिद।
मुरत्तिब और मुजफ्फिफ, ये 4 वर्ड दुनिया में सब कुछ कर रहा है। जैसे कंप्यूटर में, एहतशाम फोन बंद कर, ओके, जैसे कंप्यूटर में 0 और 1, 0 और 1, उसके अलावा तीसरा नहीं है। ये कंप्यूटर इतना काम करते दिमाग फट जाते, इतना काम करते दिमाग फट जाते। तो 4 चीज याद रखो, अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, मुसख्खिन हरारत पहुंचाने वाली, मुसक्किन नहीं है, मुसख्खिन, खा खा। मुबर्रिद इसकी ऑपोजिट, तबरीद, रेफ्रिजरेंट, कूलन। मुरत्तिब या मुरत्तब, रुतूबत पैदा करने वाला, वेटनेस क्रिएट करना। और मुजफ्फिफ, ड्राइनेस क्रिएट करना। क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी इस दुनिया से बने हुए 4 अनासिर से। अगर ये 4 अनासिर को कैसे डील करना, तुम ये 4 चीज से अगर तुमने सीखा, बाकी सब चीज सेकेंडरी है। तुम्हारी खेती में पानी पहुंचाना तुमको मालूम है, या पानी कम करना तुमको मालूम है, फिर खेती के बारे में क्यों सोचते तुम? तुमने जो भी उगाया वो उग जाएंगे, वो कुदरत का काम है। ठीक है, वो सेकेंडरी है, उसमें खाद डालना है, क्या लगाना है, उसमें अंगूर लगाना है, चावल लगाना है, ये सेकेंडरी है। उसके बाद में अंगूर आने के अंदर कहाँ बेचना है, या उसको मुनक्का बनाना है, उसको जूस बनाना है, उसको खिलाना है, किसी को फ्री में देना है, किसी को मुफ्त में देना है, ये सब टर्शरी, क्वाटरनरी, पेंडेनरी, डेक्सेनरी, डेकेनरी, सब कुछ भी तो थियरी बना हो, ये सब अपने काम का नहीं। हमारी बेसिक क्या है, खेती सही है, इसमें बहुत कुछ उग सकते, घास फूस सब उग सकते। यहाँ 4 याद रखने का, मुसक्किन, मुबर्रिद, मुरत्तिब एंड मुजफ्फिफ। इससे न मेरी बॉडी नहीं, न खेती नहीं, पूरी दुनिया इससे चलता है। कभी मरीज आता है, डॉक्टर को छींके आ रहा है, मैं मुझे अगले हफ्ते दुबई जा रहा हूँ, तो मैं दवा लिखते वक्त क्या बोलता, जब दुबई में तुम उतरेंगे, तुमको एक भी छींक नहीं आएंगे, दवा की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन फिर भी तुम दवा हाथ में रखोगे। मरीज दुबई आके क्या बोलता है, डॉक्टर साहब जैसे दुबई में उतरे, मुन्ना मुझे छींक आया, मुझे न खांसी आया। इतने परफेक्टली सर आप कैसे बताए, इतनी परफेक्टली आप कैसे बताए? दुबई में ये मुसक्की गलबा है, ड्राइनेस, हर जगह एसी, घर एसी, रूम एसी, फ्लैट एसी, स्कूल एसी, ऑफिस एसी, हर जगह ड्राई, अभी से एयर है। सर आपने जो बोला कि जैसे मैंने कलिकट एयरपोर्ट उतरने के बाद सबसे पहले मैं बोल के छींक से स्टार्ट होते हैं मेरे दुबई से मेरे गाँव में जाने के लिए। यहाँ रुतूबत की वजह, मैंने इतनी बड़ी फिलोसफी, वो क्या समझते हैं, डॉक्टर के साथ कोई जिन्नात है, डॉक्टर के पास कोई मुवक्किल है, या डॉक्टर मेरी नब्ज पकड़ के इतनी चीज बता दी, आप जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिंदास जाओ। ये दुनिया में कोई डॉक्टर बता सकते हैं, अरे तुम जाओ यार दुबई में कुछ नहीं होगा। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल तुमको क्या दिया, मुरत्तब, रुतूबत, बलगम को बढ़ाएंगे, ताफुन को बढ़ाएंगे। तो ये 4 वर्ड हमेशा वर्ड याद रखने की नहीं, जानने का, नोइंग, उसके साथ में उसकी कितनी 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 चीज कनेक्टेड है दुनिया में, बाप 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 बाप, माशाल्लाह। इब्न अरबी सूफियों का सूफी, वलियों का वली, शेखुल अकबर। इब्न अरबी सिर्फ यही काम किया, 4 से सब दुनिया की तमाम चीज को 4 से देखना शुरू कर दिया, 4 से इलाज किया, 4 की बातें की, 5 की नहीं। तो ये 4 चीज अगर पकड़े, फॉर एग्जाम्पल कोई आया, मुझे खुश्की की गलबा हो रहा है, खुजली हो रहा है,
اب مجھے اس کی یا پرابلم معلوم پڑے یا تو اس کے اندر حرارت کی غلبہ ہے، اس کو مبرد دینا ہے، مرتب دینا ہے، مجفف دینا ہے. اب کسی کو ڈائبٹک وونڈ ہو رہے، ڈائبٹک سکرا نہیں، دنیا نے اس کو بڑا بڑا تھیوری پیش کیا، یہ بلا بلا بیکٹیریل نیگیٹو گراف. یونانی والے بولتے نہیں، بلغمی سوری ڈائبٹک از آلریڈی رطوبی امراض ہے، رطوبت کی غلبے کی وجہ سے تعفن ہو کے گینڈ تک جا رہے. تم اس کو رطوبت مت پہنچاؤ، خشکی کریٹ کرو. سب سے بہترین آلمنڈ ہے مرم رال، جو سپاری سوختا کر کے دیکھ کے اٹھا کے دیکھو، دنیا میں کوئی بھی ایسی زخم نہیں جو مرتا نہیں، کیونکہ اس کے اندر انتہائی قسم کی تجفیف کا عمل استعمال کیا. کیا ہے تجفیف کا؟ تجفیف سرد خشک دوا. تو تجفیف کرنا ہے، پھر ہم سوچیں گے تجفیف کے لیے پھر کیا استعمال کرو ڈاکٹر صاحب؟ تجفیف کے لیے سرد خشک دوا استعمال کرو. ڈاکٹر پھر سرد خشک دوا کیا ہے؟ سرد خشک دوا کیا ہے؟ فلانے دوا سرد خشک ہے، سمجھا؟ تو وہاں ہم لوگ نے پہنچتے ہوئے فلانا مشروب عملہ سرد خشک ہے، کیپ اوما جدید سرد خشک ہے، کیپرال سرد خشک ہے، جواری شاملہ سرد خشک ہے، مندمل پاؤڈر سرد خشک ہے، سادہ مٹی سرد خشک ہے، سب کی سرد خشک ہے. اگر کسی کو زخم ہو گیا یا کسی کو کچھ ہو گیا تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پرانے مٹی لگایا کرو، صاف مٹی، وہ سرد خشک ہے، قابض مجفف. وہ مجفف کا کام کر رہے ہیں، تجفیف کا کام کر رہے ہیں. تجفیف کی وجہ سے رطوبت کم ہو رہی ہے، رطوبت کی کمی کی وجہ سے تعفن نہیں ہو رہے، یعنی بیکٹیریا نہیں ہو رہے. آپ لوگ بیکٹیریا اور وائرس کی ڈسکشن کر کے زندگی تباہ کر دیا. ہم بولا بیکٹیریا اینڈ وائرس اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ اس کو تم فنا نہیں کر سکتے، لیکن اس کی فیوریبل ایک ایٹماسفیئر اس کو ختم کر ڈالا. جیسے تم ڈینگو آتے یا ڈینگی یا ڈینگو فیور میں تم مچھر کے پیچھے بھاگتا ہے. ہم یونانی والے پیچھے بولتے مچھر کو ختم نہیں کر سکتے. مچھر بننے کا، مچھر انڈا دینے کی جو ماحول ہے، جو رطوبت ہے، رکا ہوا پانی ہے، وہاں مجفف کا ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے، مجفف کا. اب پرنسپل کیا ہے؟ وہاں بھی مجفف ہے، یعنی کہ مچھر کو مارنے کے پیچھے بھی ہمارے اصول کیا ہے؟ مجفف. اب وہ مجفف کے لیے دنیا کے حساب سے آپ کچھ بھی استعمال کرو، آپ گرمی پہنچاؤ یا کوئی پاؤڈر ڈال دو یا آپ اس کے آگے پوری سورج کی روشنی کھلا رکھو، طریقہ کچھ بھی استعمال کرو، ویدر اٹ از ماڈرن طریقہ ہو، چائنیز طریقہ ہو، آیورویدک طریقہ ہو، نیچروپیتھی طریقہ ہو، کیمیکل، وہ ہم سے کوئی مطلب نہیں. ہماری مطلب یہاں مجفف کا اصول علاج ہونا چاہیے تاکہ پانی نہ رکے اور وہ پانی میں مچھر نہ آئے اور وہ مچھر آپ کو کاٹے اور آپ کو بخار آئے اور آپ کو ہاسپٹل پہنچے اور آپ کو تھرومبوسائٹوپینیا ہو گئے اور آپ کی پلیٹلیٹس کاؤنٹ ہو گئی. یہ سب باکس کے اندر کی باتیں ہیں، یہ سب باکس کی ڈسکشن ہے. ہم کو باکس کی ڈسکشن بعد میں کریں گے. ارے بھائی باکس اگر کوئی ہلا ہی نہیں رہے تو باکس کے اندر کے آدمی گرے گا نہیں نا. تو کئی کو فلسفی اندر سائنس الگ بنا کے رہے، یہ باکس کو ہلاؤ مت، اسٹیشنری رکھو، اس کے لیے بہت باکس سے باہر آنا ضروری ہے. تو یونانی والے رہتا نا تھوڑا کوئی بھی ڈیزیز کے تعلق سے جلن بہت زیادہ ہوتا ہے. باہر آ کے سوچو. جیسے میں ایم این ڈی سے شروع ہوتا ہے مسکولر ڈسٹروفی میں پیشنٹ آئے تو میں کیا سوچی کہ ابھی کیا اس کو ازراقی فلاسفہ بڑے بڑے محرک صاحب یہ ماڈرن ٹرمینالوجی ہے، یہ نہیں، مجھے میری فلسفی ہے. اب میں سوچی کہ یہاں اعصاب کے اندر خشکی کی غلبہ ہوا ہے، حتی حیرت کروے رات کے مورے ساتھ میں مورے خشکی کا لڑکا غلبہ ہو گیا کدھر؟ اور میں موری اعصاب بیوی میں. کے لے کے اسی لیے وہاں ٹرانسپورٹیشن آف انفارمیشن کے لیے ڈیلے ہو رہے ہیں. اس لیے پارکنسونزم جیسے ایسا ماسکنگ فیس ایسے روبوٹ کے جیسے چل رہے ہیں، سب کر رہے ہیں لیکن سب ڈیلے ہو رہے ہیں. کہیں نہ کہیں سپلائی کم ہو رہے ہیں. وہ سپلائی کی وجہ یہ بوست ہے. اب مجھے اصول علاج کیا ہونا چاہیے؟ مرتب ہونا چاہیے. اب میں کیا بولوں گا اس کو؟ پہلے دوا کے بارے میں سوچیں گی، جو نیم حکیم جو اوریجنل حکیم ہے سب سے پہلے سوچیں گے کیا کرو تم تمہارے ابا کو گھی پلاؤ. ڈاکٹر صاحب گھی
घी तो कोई बता रहा है कोलेस्ट्रॉल कैसे अटैक है, घी सबसे बेहतरीन मुरत्तिब और इजीली अवेलेबल स्टफ है। नारियल की तेल, जो चीज मुझे रतूबत पहुंचे सबसे लोग काम करें, बाद में तुम दवा दो। जैसे अरमस का एक प्रोडक्ट बनाया मैंने, सफूफ मुबरिद, खास तौर से मैंने बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये मेरा पागलपन, मैं आउट ऑफ द बॉक्स बनाया दवा है वो सब, उसमें कोई मोहरी का असर नहीं, उसमें क्या काहू है, असबगोल है और किशमिश ही, सब ठंडा दवा। मैं बोला इसको यहाँ तरतीब की जरूरत है, इसको मतलब इसके अंदर रतूबत चाहिए। जैसे हमने हमारे कॉलेज में पढ़ के रखे जायफल, जावित्री, जंजीबील, जितने भी गरम मसाले वो सबको हमने क्या पढ़ के रखे, सब मोहरी के असर, अंबर, मुश्क, जाफरान खाली चाहिए। याद रखने का जितने भी गरम मिजाज की दवाएं सब आपकी खेती को सुखाएंगे। बस इतने ही सोचो, ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं जो सोचता है, बिहार का आलम जो सोचता है, या जुनेद जो सोचता है, वो अपने अपने हिसाब से सोचेंगे ना। सोचना मैं सारे यार, या तो घास कि पीछे क्या रुतूबत है क्या, या इसके अंदर क्या शुरू हुआ, उसको रोकने की कोशिश की जाए। ये जरूरी नहीं कि आप किसी को फॉलो मत करो। अल्लाह ताला ने हर आदमी की सोचने की सलाहियत दी है। तुमको ये देखना है कि ये खेती में क्या हुआ, तब तुमको याद आएंगे अगर फाड़ी जी या ये कोई भी, तो अपने को क्या करेंगे, थॉट एक्सपेरिमेंट। क्या है ये थॉट एक्सपेरिमेंट? किताब में नहीं मिलते, मुफरत की किताब में नहीं मिलेंगे। आप जितनी भी उठा के देखो, सबसे कम इलाज न्यूरोलॉजी में, अगर आपको शायटिका हो गया, डिस्क प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर लोग यहाँ तक के गाबापेंटिन जैसे एंटी एपिलेप्टिक दवा देता है। कौन दे रहा है? एमडी न्यूरोलॉजिस्ट। दवा नहीं, न्यूरोबियन लिख लिख के आम आदमी भी, गांव की खेड़े के आदमी, आदिवासी को भी मान ले न्यूरोबियन, तो खुद जाके खरीद के खाने लगे न्यूरोबियन और विटामिन बी सब, B12। तो वो भी बड़े बड़े डॉक्टर लिखना शुरू कर, अभी गाबापेंटिन जैसे लिख के देता है। तो यहां हमको ये सोचे कि मैंने कहीं किताब में नहीं पढ़े, फिर मैं ये दवा कैसे लिखूं? हर पेशेंट तुम्हारी एक R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स अगर परफेक्ट है, तो कैप उम्मा जदीद सपोज, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की फिजिक्स क्या है? सर्द खुश्क है, हमने पढ़ के रखे, सर्द खुश्क, बाकी कुछ नहीं मालूम इसमें क्या डाला, सब नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम दवा सर्द खुश्क फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री। तो वही कैप उम्मा जदीद को अगर तुम लोग एक सादा हकीम है तो बोलेंगे, पूछेंगे बार बार अरमद से या रिप्रेजेंटेटिव से या अलाउद्दीन से पूछेंगे, सर वो उसका डोज क्या है, वो कहाँ इस्तेमाल कर सकते, इसका मतलब तुम्हारी फंडामेंटल क्लियर नहीं है। अगर मैंने बोल दिया सर तो खुश के, बस डॉक्टर बस 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 डॉक्टर साहब अभी कुछ आगे मत, अब मैं कहाँ इस्तेमाल करूं सर तो खुश के? वो नजले में इस्तेमाल करेंगे, उसको सैलान में इस्तेमाल करें, उसको सूरत इंजाल में देंगे। सबके पीछे क्या देखो, वर्ड अलग अलग है टर्मिनोलॉजी, लेकिन उसके पीछे क्या सुनते जाओ। सूरत इंजाल वहां भी सैलान है, एतलाम सैलान है, जिरियान सैलान है, मेनोरेजिया सैलान है, पोलीमेनोरिया सैलान है, क्रोनिक डायरिया सैलान है, सिसाल सैलान है, ओटोरिया सैलान है, राइनोरिया सैलान है। हर जगह अलग अलग टर्मिनोलॉजी तुमने फार्माको का फिजिक्स के हिसाब से लिख के रखी, लेकिन हमारे फिजिक्स के हिसाब से सिर्फ हर जगह पे सैलान हो रहे, रुतूबत की ज्यादती है। उस रुतूबत को कम करने के लिए हम खुश्क तदाबीर इस्तेमाल करें, मुजफ्फिफात इस्तेमाल करेंगे, तजफ्फुफ या मुजफ्फिफ की जो चीज है वो हम वहां इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, आपको एक दवा से आपके क्लिनिक कितने चला रहे। अगर तुम एक रियल हकीम है, 4 डब्बी काफी है। ये 4 चीज के लिए, मुसक्किन, मुबर्रिद, मुरत्तिब एंड मुअल्लिम,
बाकी सब मुहल्लिल मुनफ़ी वो सब बात की बात है। अब मुझे समझ में आ रहा है इसके अंदर बरूदत की गलबा है, हर चीज रुतुबा बरूदत की गलबे की वजह से हरारत बढ़ रहा है, तो मेरा टारगेट है इसको बरूदत बढ़ा दिया जाए, या इसको बरूदत की गलबा है, हरारत की कमी है। हरारत के किसके लिए जरूरत है? डाइजेशन के लिए। अब मुझे मालूम पड़ा इस मरीज के अंदर बलगम बढ़ गया। अब हमने बलगम 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 से मुराद मुबर्रिद इफेक्ट बढ़ गया, इस वजह से उसके अंदर मुसख्खिन हरारत कम हो गया, तस्कीन हरारत, उस वजह से उसकी जिगर कमजोर हो गया, उस जिगर की कमजोरी की वजह से उसको बर्स हो गया, या उसकी पेट बढ़ रहा है, या उसके डाइजेशन ये हो रहा है, या उसको कुछ भी तेल की चीज खाने से पेट बढ़ रहा है, उसको फैटी लिवर हो रहा है, उसकी कोलेस्ट्रॉल में डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब अनगिनत बातें हो रही। तुम उल्टा आ गया कुल के तरफ, कुल के तरफ, जुजू से कुल। हम कभी भी यूनानी वाले कुल से जुजू के तरफ नहीं आते, जुजू से कुल के तरफ आता है। कुल कहां तक पहुंचता है? कुल पहुंचता है मुबर्रिद, यानी कि इसकी जिगर में गैर तबई बरूदत बढ़ चुकी है। मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है, किसका मालूम, बर्स का पेशेंट, सबसे पहले मैं अब्बे कबीर नौशादरी लिख के देता हूँ। किसी को वजन कम करना है तो अब्बे कबीर नौशादरी लिख के देता हूँ। कभी किसी को डायबिटिक हो गया, डॉक्टर साहब मुझे दवा ज्यादा मत दे, सिंपल दवा दो, मैं सिर्फ बोले अब्बे कबीर नौशादरी जारी रखो, कुछ तो कुछ कहीं ना कहीं तुम्हारी जिगर में हरारत बढ़ेगी और तुम्हारा इस्तेहाला, कोई भी इस्तेहाला मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आएंगे, तो मैंने ये लिखी कि मेटाबॉलिज्म कम हो गया। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए अलग है, मतलब ये कम हो गया, उसको बढ़ाने के लिए हर दवा की जरूरत है। वही अब्बे कबीर नौशादरी कभी फैटी लिवर में देता हूँ, वही अब्बे कबीर नौशादरी कभी डिसलिपिडीमिया देता हूँ, वही अब्बे कबीर नौशादरी किसी को ग्रोथ प्रमोट करने के लिए देता हूँ, वही अब्बे कबीर नौशादरी किसी के स्किन के लिए देता हूँ। तो यहां अगेन मुसक्किन और मुबर्रिद की खेल है। आजा जिगर अपनी मुतदिल मिजाज के हिसाब से हार होना चाहिए। अगर वो हरारत अपने तरफ कम हो गया तो हम बोलेंगे जिगर में बरूदत बढ़ गया, या हम उसको कॉमन लफ्ज में बोलेंगे इसको बलगमी अमराज हो गया। इसको बलगमी अमराज हो गया जगह पे बोल सकते, इसकी बॉडी में तमाम आज़ा जो गर्म होना चाहिए वो ठंडा हो गया, मुबर्रिद हो गया, अभी मुसख्खिन की जरूरत है। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, वहां एलएफटी चेक किया, उसके अंदर क्या क्या, वो सब तुम चेक करो बाद में, तुमको रिसर्च के हिसाब से। हकीकत सिर्फ यहाँ है। अब किसी के हाथ पैर फट रहे, क्रैक फुट हो रहे, स्क्लेरोडर्मा हो रहे, जर्नलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा हो रहे। स्क्लेरोडर्मा का भी इलाज, पार्किंसोनिज्म का भी इलाज, फालिज का भी इलाज, अल्जाइमर्स का भी इलाज, एमएनडी का भी इलाज, गिल्डिंग बैरी सिंड्रोम का भी इलाज, जेबीएस का भी इलाज, सबका इलाज मुबर्रिद है, मुसख्खिन नहीं है। हम लोग बोलते यार रिजल्ट नहीं मिल रहा, कि हमने अजरकी दिया, फिर हमने क्या पढ़ के रखे, वो कंपनी के एक असाब आते हैं, मुकवी असाब, यहां तक कि हमने मुरव्वुल अरवा लिख के दिया। मुरव्वुल अरवा 120 दवा है शायद, हमने मुरव्वुल अरवा भी लिख के दिया। तो याद रखो ज्यादा पढ़ना नहीं, जो चीज पढ़ा वो परफेक्ट रखो, उससे हर चीज हासिल हो सकती है। तो कुल्लियात पढ़ने की जगह, कुल्लियात आगे पढ़ने से पहले ये 4 चीज को ध्यान रखो। इस 4 चीज के बाद में हरारत बॉडी में क्या क्या तब्दीलियां लाएंगे सब सेकेंडरी है। हरारत खुश्की ला सकते हैं, हरारत तरी भी ला सकते हैं, बरूदत खुश्की भी ला सकते हैं, बरूदत तरी भी, ये सब सेकेंडरी है। वो जो दो दवा जो काम करते हैं, हमने पढ़े दवा 2 हिसाब से काम करते हैं। क्या क्या है वो? बिलफील एंड बिल कैफियत। बिलफील एंड बिल कैफियत अभी भी किसी को मालूम है दवा के असर कैसे है। जैसे मेरे कैफियत से आप लोग मुतासिर हो गया, सपोज कोई साधु सन्यासी को, साधु सन्यासी की इतना एहतराम करते हैं कोई लोग, तो उसको प्रणाम करता है या उसके नीचे गिर जाते हैं पैर पे, तो कैफियत है वो, मतलब उतनी
इज्जत और कैफियत से, नीचे जमीन पे आ गया। उसकी जगह बिल फील क्या है, वो साधु ने इसके सर पे मार दिया, वो जमीन पे गिरे, वो बिल कैफियत है। वो उसको साधु ने सर पे मारे या कोई धक्का मारे, वो जमीन पे गिरे, पैर पे गिरे, वो बिल फील है। ये समझ, आपके पास एक कंप्यूटर रखा है, कंप्यूटर का काम क्या है, सबको मालूम है कंप्यूटर का काम क्या है। अब वो कंप्यूटर के जो सीपीयू बहुत बड़ा जगह, उसमें चाय की ग्लास ला के रख दिया, या वहां से एक रोशनी आ रहा था, तो मैंने क्या किया, कंप्यूटर का जो सीपीयू को थोड़ा सा ऐसा टर्न किया ताकि वो रोशनी ना आ जाए, तो वो बिल फील है वो कंप्यूटर, जबकि उसकी कैफियत के काम ही नहीं हो, वो बिल फील काम कर रहा है, बिल फील काम कर रहा है, कोई कैफियत नहीं, कैफियत से कभी मुतासिर ना, तो बिल फील। जैसे घी पी लिया, घी का एक कैफियत है। अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे मैदे में थोड़ा लुजूजत पैदा करना है, मैंने पूरा 1 चम्मच 4 चम्मच घी पी लिया, सुबह मस्त मोशन मिला। वो मोशन जो मिला है वो घी का कैफियत नहीं है, वो घी बिल फील काम किया। कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया मैदे में, मैंने थोड़ा सा पारा पी लिया, पारा बहुत वजन रहता है, तो पूरा पूरा जाके ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, एवी होने की वजह से जाके वो आयनस से निकल गया बाहर, वो बिल फील है वो। जबकि पारा या मरकुरी या जीपक, उसका काम अलग है, उसकी फील कैफियत के हिसाब से। तो दवा को सीखने की तरीका याद रखो, कॉम्प्लिकेट मत करो, तुम फार्माकोलॉजी मत सीखो, इसका मेटाफिजिक्स, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स सीखो। मैं किसी को अगर सपोज सूरत इंजाल के लिए कोई दवा लिख के देना चाह रहे हैं, ये जरूरी नहीं उसके अंदर अब्बे मुमसिक तिलाई, माजिन, मुकव्वी, मुगल्लिस, मनी, ये सब लिख के आने की जरूरत है। आपको मालूम है जवारी शामला है, सर्द खुश्क, लिख के दो। माजिन मोचिरस नहीं यार, माजिन मोचिरस तो औरतों के लिए बनाया गया। माजिन मोचिरस आदमी की सूरत इंजाल में दे सकते हैं, जिरियान में दे सकते हैं, इतिलाम में दे सकते हैं, इवन बोले फराश, बच्चे जो पेशाब करते हैं उसको भी आप माजिन मोचिरस लिख के दे सकते। देखने वाले डॉक्टर क्या बोलेंगे, अरे यार वो हम लोग सब उस कॉलेज में पढ़े, हम तो मेडिकल के स्टूडेंट है, पीजी में हमको पढ़ाया माजिन मोचिरस सैलानुराम के लिए या पोलीमिनोरा के लिए। ये डॉक्टर कौन सी डॉक्टर ये देते हैं कि सबको यही देते हैं मोचिरस? तब उनको समझाओ भाई, तुमने साइंस पढ़ा है, हमने मेटा साइंस पढ़ा, तुमने साइंस पढ़ा, हम मेटा साइंस पढ़ा, साइंस के पीछे क्या होगा ये हमारे पास है, इसके हिसाब से हम दवा देते हैं। तो मुफर्रात के लिए ये 4 टर्मिनोलॉजी याद रखो। इस टर्मिनोलॉजी के बाद में मुफरत में दाखिल हो जाओ, पहले मुरक्कब बात में, और पूरी की पूरी 3,500-10,000 दवा के ऊपर मत जाओ। यहां एक चीज याद रखो, तो आयुर्वेदिक और चाइनीज और यूनानी में क्या फर्क, इधर भी एक मालूम पड़ेगा। आयुर्वेदिक वाले त्रिदोष को मानता है, खून को नहीं मानता, सौदा सफरा बलगम को मानता है, दम को नहीं मानता है, और 5 अनासिर को मानता है और 3 अखलाक को मानता है। उनको प्रॉब्लम क्या होता है मालूम? उनको हर जगह पे प्रॉब्लम आएंगे। कैसे? जैसे हमको कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा मैथमेटिक है 4 4 4 4 4 या 2 2 2 2 2, तो अगर ईंट लाके दे दे, करट सब फिट करके ईंट खत्म हो गया, घर बन गया। आयुर्वेदिक वाले कभी एक ईंट कम हो जाते, एक ईंट ज्यादा हो जाते, परेशान रहते हो, वो ईंट को कहां रखे? एक ईंट ज्यादा हो जाते उनके अंदर, यार एक ईंट खत्म हो गया, घर खत्म, अरे यार ये ईंट तभी मसला किया था हमने, तो एकदम सिस्टमैटिक साइंटिफिकली आया, फिर एक ईंट कम, क्योंकि 3 पे बस गया। अगर आपको कोई सौदावी मर्ज हो गया, आपको कोई सौदावी मर्ज हो गया, उसकी जिद में कोई दवा नहीं उनके पास, हमारे पास है दम्भी दवा है, हमारे पास दम्भी दवा है।
सौदावी का ऑपोजिट क्या है? बारी आ रतब, हमारे पास उनके पास नहीं है। अगर उनसे पूछ के देखो सौदावी मर्ज के लिए, क्योंकि वो भी हम भी प्रिंसिपल एक ही है, उनके अंदर भी इलाज में जिद है। हम मिजाज कहते, उन लोग वीर या गुण कहते। क्या कहते? वीर या गुण। वो वीर गुण का बात करें तो उनसे इतना पूछ के देखो, सौदा तुम बलगमी अमराज को गर्म दवा देते, वो भी हम भी सब सेम है। हमको अगर किसी को सफरा भी हो गया गर्म दवा, तो वो भी क्या देते? इमली देते, आलू बुखारा देते, अनानास, सब ठंडा दवा, वो सब परफेक्ट है। सर्दी जुकाम हो गया तो वो भी कहते तुम अदरक का चाय बनाओ, कॉफी पियो, या गरम गरम अशिया इस्तेमाल करो, ठंडी चीज से दूर रखो, वो भी सही है, हम भी सही है। सवाल ये होता है कि सौदावी मर्ज अगर आ गया तो सौदावी मर्ज के अंदर उन लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोग के लिए अगर ये 4 कैटेगराइज कर दिए, तो 4 कैटेगराइज करने के अंदर हमको कोई इश्यूज नहीं आ रहा, कई जगह पे प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो ये जो लेक्चर के बाद में हम लोग एक स्टार्ट रखेंगे, ये जो कुलियात अदविया का क्लासिफाई करते करते जाएंगे, बीच में थोड़ा नुस्खा भी सीखेंगे हम लोग, नुस्खा जात फॉर्मूला लास्ट के, लेकिन मैं पहले से बताऊंगा ताकि आप लोग अगर हरमस आपके साथ अगर नहीं भी रहा तो आपको एक इंडिपेंडेंट हकीम बने। ये नहीं कि आप किसी से डिपेंड ना हो जाए। आपके घर पे सिर्फ 5 या 4 दवा बना के रखो, कुछ भी उठा के दे दो, मशहूर हो जाएगी। उसके हाथ में इतना शिफा है, वो कोई भी डब्बे में डाल के कुछ भी दे देते, अच्छा हो जाता है। कोई भी डब्बे में नहीं, 4 डब्बे में से कोई भी एक डब्बा, तुमको मालूम है उसको क्या देना है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमैटिक मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसकी अगर थोड़ा साइंटिफिकली आपको थोड़ा क्लासिफाई करके व्हाट इज दर्जे, दवा की दर्जा क्या है, कयास कैसे करेंगे दवा के, ताकि आपको थोड़ा रिसर्च आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए, तो इसके अंदर थोड़ा सा चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स। यानी सिर्फ मैं आउट ऑफ द बॉक्स आया हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये नहीं कि आइंस्टीन ये सोचने लगे कि एक आदमी एक ट्रेन में बैठे, आमने सामने मैं और अब्दुल्ला आमने सामने बैठ के बात कर रहे, और मेरे अब्दुल्ला के हिसाब से हमारे अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। जब कोई आदमी ट्रेन से बाहर है तो ट्रेन चल रहे, मैं और अब्दुल्ला भी चल रहे, समझा? तो एक एक कंटेस्ट में, एक एक डायमेंशन में अलग अलग नजरिया आ रहा है। बॉक्स के अंदर एक नजरिया, ऐसे हम जब दवा के बारे में पढ़ते तो हर कंटेस्ट में एक नजरिया देखना जरूरी है। सफरावी दवा, बलगमी दवा, पहले कम से कम उस चीज का एक लिस्ट में आप लोग को बना के दूंगा। मैं ये नहीं चाह रहा कि तुम लोग लिखो नोट, ये तरीका है नहीं हमारे, हम तो तुम समझ के रखो, सीख के नहीं, समझो चीज को, ताकि हम लोग क्या कहें, कोई हाथ उठाया, फैजान अहमद शब्बीर अहमद भाई हाथ उठाया, तो मेरा कहने का मतलब नेक्स्ट हम लोग लेक्चर से थोड़ा सिस्टमैटिक आप लोग को अगर अफराद सीखने तो मैं सिखाऊंगा। तो मेरा टॉपिक ऐसा ही रहता है कि कभी मैं कहीं से स्टार्ट करके कहीं भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो टॉपिक से रिलेटेड ही रहे, ऐसा नहीं कि अनरिलेटेड चीज हो। सो थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ फैजान अहमद शब्बीर अहमद ने हाथ उठाया, हाथ नीचे